Okay, so welcome everybody. And yesterday we finished with Grishma Charya. Grishma, a boring Rutu, no alcohol, no sexual activity, only तीखा नहीं खाने का, ये नहीं करने का, सिर्फ मीठा मीठा शरबत पीते रहने का, ठंडी हवाओं में रहने का, ठंडी जगहों पर गार्डन्स में रहने का, दिन में भी सोने का. तो बोरिंग, no cycling, no exercise. Then we come to the next Rutu, which is Varsha Rutu. A Rutu which is soon to arrive. Soon to arrive. So what happens in Varsha Rutu? What are the changes? The changes in the atmosphere are the wetness and moisture in the atmosphere increase. Then there are high winds, heavy winds. 3 दिन पहले we have also seen heavy winds flowing around. बाद में बारिश आई नहीं, but there are very heavy winds which flow in, and at places it may even snow. So because the what happens is slowly and steadily after Grishma Rutu, the because of the winds, because of the wetness, because of the snow, the overall environment around us cools down. So the metabolism becomes slow. And when the metabolism becomes slow, what happens is the body temperature need not be maintained. At the same time, because in this season, what happens is Amla Rasa increases. So because Amla Rasa increases in the nature, Pitta also starts increasing. So in your body, Pitta starts accumulating and metabolism becomes slow. So what to do in Varshacharya? Simple, wear thin clothes which will dry very easily. Take a ride frequently, go out, then drink boiled cooled water from wells. See, even they understood that at in this season there are very high chances of waterborne disease. They did not know what is waterborne, they did not know what is a bacteria, but they understood that if we drink water from different water bodies without boiling, we will get some disease, or they have observed. So they have advised to drink boiled and cooled water from wells. Then avoid overexposure and safeguard from rain. So you should not stay more in the humid atmosphere. You should not stay wet for a long time. At the same time, you should safeguard yourself from the rain so that you should not slip, gir nahi jaye. So this is all. And though you are learning it after 12th standard, all this was taught to a 8-year-old child. So that is why you may find kya hai. But this was taught to an 8-year-old child, and that is why all basic things, because 8-year-old child loves to play in the rain. So he's told that do not overexpose yourself, safeguard from the rains. In Varsha, what happens is we'll come to the cycle at the later part of the lecture, but in Varsha, there is prakop in the Vat. Even in normal season, normal natural, if you sit in a clinic, just as I told that asthma patients or kapha patients or kushta patients will be more in March, April, that is the Vasanta Rutu. Similarly, in Varsha Rutu, you will have more of Sandhivat, you will have more of gaseous distensions, abdominal issues. So, Varsha Rutu is a Rutu in which Vat increases. We'll come to that at the later part. But this is a Rutu in which Vat increases. And what is the best treatment for Vat? Told in the first chapter? Basti. Basti Vireko Vamano Tatha Tailam Ghrutam Madhu. So, Basti is the best treatment for Vat, and that is why, especially Asthapan Basti. Asthapan Basti is a Quath Basti. So, Quath Basti of different Vata Nashak drugs can be given in Varsha Rutu. Different Vata Nashak drugs can be given in Varsha Rutu. Now, what to eat? Again, because the metabolism is slow, the Agni is weak. So, old food grains, jungle mouse, soup of pulses, old wine, mastu. Mastu is the upper layer of, not the lower layer of the दही. दही को बहुत समय अगर रख दिया तो एक ऊपर वाला क्लियर लेयर होता है, एक नीचे वाला गाढ़ा लेयर होता है. तो ऊपर वाला जो लेयर है दैट इज मस्तू. देन अग्नि बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के हर्ब्स जैसे
काली मरी ले सकते हैं या सूंठ सूंठ ले सकते हैं. एंड फूड्स विद मोर सॉल्टी एंड सार टेस्ट टू रिड्यूस वात, वात को कम करने के लिए. तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, तो पहले 3 रस जो हैं वो वात को कम करने के लिए. तो मधुर रस हमने ग्रीष्म में ले लिया और वर्षा में हमको सोर एंड सॉल्टी टेस्ट लेने को बोला है. What not to eat, what not to do? Don't walk. Don't walk means don't walk barefoot or don't walk in an area where there is too much of mud. Don't go near rivers. Don't sleep on the ground floor. Now, why they said that don't sleep on the ground floor? That is because जब बारिश आती है तो what happens? मेंढक, चूहे, सांप, ये सब ग्राउंड फ्लोर में घुस जाते हैं और there are high chances that so don't sleep on the ground floor, sleep on the first floor so that they cannot climb the stairs and come up. You are safe. So don't sleep on the ground floor. One more thing of not sleeping in the ground floor, especially for those who have experienced Bombay floods, that overnight flood can come in the ground floor. So it is not safe to sleep on the ground floor. That is why they have said that don't sleep on the ground floor. Don't go near the rivers, because in this season what has happened that गर्मी में वसंत ऋतु के बाद ऑलरेडी नदियों में बहुत जोर का प्रवाह चालू हो जाता है. गर्मी में वो और ज्यादा हो जाता है बिकॉज द स्नो इज मेल्टिंग टू मच. एंड वर्षा ऋतु में तो आग में पेट्रोल छिड़क जाता है, ऑलरेडी प्रवाह ज्यादा है, ऊपर से बारिश हो रहा है. तो डोंट गो नियर रिवर्स. डोंट डू एनी एक्सर्शन, वात बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सो नो एक्सर्शन, नो एक्सरसाइज. फॉर दीज 2 ऋतुज, those who are lazy, grishma ritu and varsha ritu is the best. No exercise, no cycling, nothing. ठीक है. ग्रीष्म ऋतु में दिन में भी सो सकते हैं. No sexual activities. So again, like ग्रीष्म ऋतु, sexual activities has to be reduced. No exposure to sunlight. सनलाइट में बाहर जाने का जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है. आई डोंट नो द रीजन. एंड ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने सोने को बोला है, बट वर्षा दे है agreed on diva swap. Diva is din, swap is neither. So दिन में सोना not allowed in varsha ritu. What we do in varsha ritu, because right now we have better ways of safeguarding from the rain, better ways of staying away from humidity. They did not have a raincoat. We have a raincoat. उनको छत्र था, लेकिन वो छत्र बहुत भारी होता था. हमको बंद चालू होने वाला छाता है. तो इन दोज डेज छत्र वॉज नॉट समबडी हु, मतलब सबके लिए नहीं था छत्र. अलग अलग इसमें अगर सुना हो तो छत्रधारी लोग अलग से होते थे, छत्रधारी. तो ड्यूरिंग दैट टाइम्स वर्षा ऋतु इज अ ऋतु टू स्टे सेफ. ग्रीष्म ऋतु इज अ ऋतु टू स्लीप. सो वर्षा ऋतु में सेफ रहना है. जैसे हमने वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में लघु अन्न लिया है, वैसे लिया है. पुराण धान्य लिया है, पुराण मद्य लिया है. ग्रीष्म ऋतु में तो मद्य डिसअलाउड है, वर्षा ऋतु में थोड़ा सा पुराण मद्य आप ले सकते हैं. नाउ वी कम टू द लास्ट चर्या विच इज शरद. शरद में क्या होता है? शरद इज समवेयर नियर वर्षा के बाद देयर इज सडन चेंज फ्रॉम कोल्ड टू हीट. तो गर्मी, वर्षा और अक्टूबर हीट के बाद सडनली शरद ऋतु में गर्मी और वर्षा के बाद शरद ऋतु में अक्टूबर में वर्षा में ठंडक होती है, अक्टूबर में सडन चेंज होता है फ्रॉम कोल्ड टू हॉट. सो व्हाट हैपेंस? पित्त एग्रीवेट्स, बट मेटाबॉलिज्म इज स्टिल स्लो. पित्त एग्रीवेट हो जाता है बट मेटाबॉलिज्म इज स्टिल स्लो. सो व्हाट टू डू इन हॉट डेज? स्पेंड इवनिंग्स ऑन टेरेस. अवॉइड एक्सपोजर टू हैवी मील्स. गुरु अन्न नहीं लेना है. ऑयल फैट नहीं लेना है. सनलाइट ज़्यादा नहीं लेना है. स्ट्रॉन्ग वाइन्स लेना है. डे स्लीप दिन में अक्टूबर में, बिकॉज देयर आर हॉट विंड्स. शरदचर्या में पित्त प्रकोपित हो जाता है. सो पर्गेशन, दैट इज विरेचन. तिक्त रस वाले घी लेना है. तिक्त रस इज अगेन एंटागोनिस्टिक टू पित्त and ghee is again antagonistic to pitta. At the same time you can do rakta mokshan in sharad. So virechan and rakta mokshan can be done in sharad. This charya appears to be a little bit like
Grishma Rutucharya only, but apart from the fact that Madhur Ras is not to be taken. So Madhur Ras can be taken. Foods with bitter, sweet and astringent taste, that is Madhur, Tikta and Kashay Ras wale khana, because Pitta is aggravated, but only with easily digestible like rice, green gram, hara chana, patol is परवल, हनी, शहद, और इस ऋतु में हंसोदक नाम का, जब अगस्ती तारे का उदय हो जाता है, व्हेन द अगस्ती स्टार राइजेस, तो में जो भी पानी गंदा हो गया है वो अब शुद्ध हो गया, अगस्ती तारा एक बार राइज हो गया तो उस पानी को हंसोदक कहते हैं, क्योंकि हंस आके वो पानी पीना चालू कर देते हैं, तो इसीलिए उसको हंसोदक कहते हैं। हाउस इज स्वान, तो हंसोदक कहते हैं। तो हंसोदक एक बार आ जाने के बाद यू कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम वाटर बॉडीज। ये गड़बड़ हो गया शरद ऋतु की चर्या में, कॉपी पेस्ट। एनीवे, शरद ऋतु की चर्या में क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद आप ग्राउंड फ्लोर पे सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मेरी आवाज कट हो रही है, डोंट वरी, ये सब रिकॉर्ड, जब रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगा मूडल पे तो क्लियर आवाज आएगी, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो शरद ऋतु की चर्या में यू कैन स्लीप ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यू कैन एकदम पतले कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद शरद ऋतु में हल्का खाना खाना चाहिए। सो दिस ऑल एक्सेप्ट फॉर ठंडी के ऋतुओं में गुरु आहार इज अलाउड, बाकी सब ऋतुओं में लघु आहार, मतलब हेमंत और शिशिर, ये दो ऋतुओं में गुरु आहार अलाउड है, वाइन्स अलाउड है, सेक्सुअल एक्टिविटी, हेवी सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड है, बाकी सब ऋतुओं में ऑल दीज थिंग्स इज रिड्यूस्ड। नाउ वी गो टू द उपसंहार ऑफ दिस चैप्टर। उपसंहार इज what overall this chapter tells. So there are, look at the first column, there are 6 different ऋतुज which are mentioned. ऊपर वाले 3 शिशिर वसंत ग्रीष्म विसर्ग काल, एंड नीचे वाले 3 वर्षा शरद हेमंत आदान काल। ओके, फिर बल ऊपर वाले 3 ऋतुओं में उत्तम से चालू होता है और हीन तक जाता है ग्रीष्म में, और नीचे वाले 3 ऋतुओं में हीन से चालू होता है और उत्तम तक जाता है हेमंत में। So if you see this, if you visualize this as a circle, what happens is शिशिर का उत्तम बल और हेमंत का उत्तम बल एक साथ है। So these two ऋतुज are together. Whereas ग्रीष्म का हीन बल जो विसर्ग काल में आता है और वर्षा का हीन बल is together. So मध्यम is the only, Vasanta and Sharad are the only 2 ऋतुज which are apart from each other, so they have मध्यम बल। रस में शिशिर में तिक्त, वसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु। दिस रस इज व्हाट इज इंक्रीज इन द नेचर। वर्षा ऋतु में आम्ल, शरद ऋतु में मधुर और हेमंत में लवण। दीज आर द इंक्रीज रस इन नेचर। नाउ दिस द लास्ट पार्ट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. This is what is Sanchaya, Prakopa and Prasham. Now what is Sanchaya, Prakopa and Prasham? If they have not taught you in Kriya as yet, Sanchay means accumulation. So slow accumulation of something is Sanchay. Prakop is heavy accumulation. Let me give you an example. जैसे मैंने एक ये रख दिया है, नहीं मैंने कुछ रखा नहीं है, एक बाथ टब है। सो बाथ टब में मैंने नल थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उस बाथ टब में एक्यूमुलेट हो रहा है। आई होप एवरीबडी हैज सीन अ बाथ टब, आई हैव ओनली सीन इट वन टाइम। सो पानी धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है। सो दिस एक्यूमुलेशन इज नोन एज संचय। देन प्रकोप इज व्हाट, जब बाथ टब पूरा भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा या पानी फैलना चालू हो जाएगा, पानी गिरना चालू हो जाएगा। सो दैट इज एन अवस्था विच इज प्रकोप, इट इज हैवी एक्यूमुलेशन अप टू द ब्रिम। एंड देन देर इज प्रशम, दैट मैं आ गया, मैंने बाथरूम में देखा, हाय राम ये तो बाथ टब भर गया है, तो व्हाट आई पुल्ड द प्लग और वो पूरा पानी
करके उस बाथ टब में से ड्रेन हो गया. सो प्रशम इज द ड्रेनिंग और प्रशम इज द डिसएंगेजमेंट और प्रशम इज गोइंग अवे ऑफ दैट एक्यूमुलेटेड दोष. तो कोई भी दोष अपने नेचुरल वे में संचय भी होता है. एंड in a disease state, what happens is after prakop, prasar comes in a disease state. Now what we are seeing here is a natural state of the dosh. शिशिर में कफ ठंडी के वजह से, बिकॉज शीत गुण प्रधान है कफ, तो शीत गुण प्रधान होने की वजह से शिशिर में कफ एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है बॉडी में, अलग अलग पार्ट्स में, स्पेसिफिकली द चेस्ट, अलग अलग पार्ट में कफ एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है. फिर जैसे ही वसंत में सूरज की गर्मी आ जाती है, तो जैसे स्नो पिघल जाता है वैसे ही ये कफ भी पिघल के फैलना चालू हो जाता है. सो कफ गर्मी में फैल जाता है. सो दिस इज प्रकोप. और जैसे ग्रीष्म में जो इसका फैला हुआ जो कफ है उसमें जो द्रव गुण, वो द्रव गुण इज बिकॉज ऑफ आप धातु और वाटर. तो जैसे ही गर्मी में ये वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाता है या वाटर कंटेंट नेचर वापस ले लेता है, तो ये कम हो जाता है या शांत हो जाता है, प्रशम हो जाता है. प्रशम मतलब शांत हो जाना. सो दिस इज द कफ साइकिल. इट एक्यूमुलेट्स इन शिशिर ऋतु, इट इंक्रीजेस in vasanta rutu and it decreases in grishma rutu. This is naturally, and that is why अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो जब ये कफ नेचुरली इंक्रीज होगा तो ही विल हैव मोर प्रॉब्लम. सो दैट इज वसंत ऋतु में कफ प्रकोपित हो जाने से अस्थमा के पेशेंट में ज्यादा तकलीफ होती है. अब कफ का जो पंचकर्म बताया है वो है वमन. So that is why वसंत ऋतु में वमन देना is beneficial. Why it is beneficial? Because पेशेंट में अगर कफ दोष कम भी तो भी बिकॉज नेचुरली कफ दोष बढ़ा हुआ है तो इट कैन बी इजीली रिमूव्ड. योर बॉडी इज लाइक अ बैग एंड शोधन इज लाइक यू आर ट्राइंग टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द बैग. सो उस बैग में अगर कुछ होगा तभी आप रिमूव कर पाओगे. सो इफ वमन से कफ रिमूव होता है तो you are putting your hand in the bag and there is nothing in the bag, or whatever is there in the bag, if you do a vaman in shishir rutu, what happens is the कफ जो है वो जम के बैठा है, नीचे चिपक के बैठा है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है. लेकिन वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो गया है, उसको निकालना बहुत ईजी है. सो दैट इज वाई प्रकोप अवस्था में अगर पंचकर्म देंगे तो दैट इज बेटर. रादर if you want to maintain your health, you should do vaman in vasanta ritu. Why? Because any excess kapha which is lying in your body can be removed out very nicely. अगर वसंत ऋतु में नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ग्रीष्म ऋतु में उसका शमन होने ही वाला है. बट दैट शमन विल ओनली हैपन टू द नेचुरल कफ विच हैज इंक्रीज. इफ यू आर टेकिंग सम कफ प्रकोपक आहार विहार, कफ को बढ़ाने वाला कोई आहार विहार अगर ले रहे हैं तो फिर भी वो कफ ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही बैठा रहेगा कहीं कोने में. सो दिस इज द कफ साइकिल. देन वी कम टू द वात साइकिल. वात का संचय जो है, whenever there is less amount of water, there is more amount of rukshata in the environment, Vat starts increasing. So Grishma Rutu is a best Rutu for the accumulation of Vat. वात में रुक्षता ज्यादा है, वात में स्निग्धता या ड्राइनेस आ गया है, तो दोनों वात के गुण सूटेबल हैं तो वात एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है. फिर वर्षा में क्या हो जाता है, वर्षा में सडनली शीत गुण बढ़ जाता है सीजन में. तो वर्षा सीजन में जब शीत गुण बढ़ जाता है तो तीसरा गुण भी हो जाता है वात का. वन इज योर ड्राइनेस, रुक्षता, सेकेंड इज योर शीतता. And because this gun has, all the three guns have increased, what happens is वर्षा ऋतु में सडनली वात का प्रकोप हो जाता है. तो इस सीजन में वात को शमन करने के लिए जो भी पंचकर्म बताया है, विच इज बस्ती, इज द मोस्ट आइडियल टू बी गिवन. सो वसंत ऋतु में वमन, वर्षा ऋतु में बस्ती.
वर्षा ऋतु में बस्ती देने से क्या हो जाता है, वात शांत हो जाता है। अगर आपने वात को इस ऋतु में शांत नहीं किया तो ऑटोमेटिकली शरद ऋतु में उसका शमन होने ही वाला है, शमन होने ही वाला है। देन वी कम टू पित्त। पित्त जैसे पित्त का साइकिल जो है वो वर्षा ऋतु में चालू होता है, बिकॉज वर्षा ऋतु में आम्ल गुण बढ़ जाता है, वर्षा ऋतु में नेचर में आम्लता बढ़ जाती है, तो इसीलिए पित्त जो है वो या द्रवता बढ़ जाती है वर्षा ऋतु में। द्रव इज ऑल्सो गुण ऑफ पित्त। सो पित्त स्टार्ट accumulating in varsha ritu. Then comes sharad ritu when suddenly there is a shift from cold to hot. तो उस समय में आम्ल गुण, उसके बाद द्रव गुण और तीसरा उष्ण गुण। तो उष्ण गुण भी पित्त का सडनली बढ़ जाता है। तो पित्त को क्या है, तो मतलब आज बर्थडे भी है और टीचर भी क्लास में नहीं है तो ही गेट्स एग्रेवेटेड। चलो, तो पित्त का प्रकोप हो जाता है शरद ऋतु में। इसीलिए पित्त का जो पंचकर्मा है दैट इज विरेचन। सो विरेचन इज द मोस्ट आइडियल गिवन इन शरद ऋतु। एंड व्हाट आई व्हेन आई एम सेइंग मोस्ट आइडियल, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी इंडिविजुअल्स। Healthy individuals. For a deceased individual, you can give virechen even in Grishma Ritu, you can give virechen even in Vasant Ritu, if the pitta in a deceased individual is more. But for a healthy individual, these are the Ritus or these are the seasons in which Panchakarma is advised or is given. If pitta is not addressed to in Sharad Ritu, what happens is ऑटोमेटिकली इन हेमंत ऋतु जैसे ही कंफर्टेबल लेवल्स या उष्ण गुण कम हो जाता है वैसे ही पित्त अपने आप शांत हो जाता है। सो दिस इज द साइकिल। कफ का साइकिल शिशिर वसंत ग्रीष्म, वात का साइकिल ग्रीष्म वर्षा शरद, और पित्त का साइकिल वर्षा शरद हेमंत। सो नाउ यू सी इन विच ऋतु द हेल्थ ऑफ अ पर्सन विल बी द मोस्ट वीक। इट विल बी द मोस्ट वीक इन ग्रीष्म ऋतु एंड वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में पित्त भी एक्यूमुलेट हो रहा है और वात बढ़ गया, वेरेज इन ग्रीष्म ऋतु में वात एक्यूमुलेट हो रहा है। बट ग्रीष्म ऋतु से भी वर्षा ऋतु में ज्यादा कंडीशंस खराब होंगे, बिकॉज देर आर टू दोष विच हैव इंक्रीज, वन इज इंक्रीजिंग एंड वन इज प्रकोपित। सो अगर कौन से ऋतु में सबसे ज्यादा तकलीफ या हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वन इज वर्षा ऋतु। एंड इवन इन अवर नॉर्मल कोर्स वी फाइंड दैट द रेनी सीजन इज द पीक सीजन फॉर डॉक्टर्स। Rainy season is the peak season for doctors because there are waterborne diseases, there are airborne diseases, then digestive disorders, सांधे का दर्द, ये इतने सारे पेशेंट्स होते हैं वर्षा ऋतु में। So if you start a clinic, don't close it or don't go on a vacation in Varsha Ritu. Which Ritu you can go on a vacation with? You can go on a vacation on Hemanta Ritu because पित्त प्रशम हो गया है, कोई भी दोष बढ़ा नहीं है, और शिशिर ऋतु दैट कफ संचय हो रहा है और प्रकोप होने को टाइम है। So these are the two seasons which are the slack seasons for doctors, and this is a season which is the peak season for doctors even today. Okay, so now we come to the other part. I hope everybody knows the months of the Hindu calendar. So we can start with Vasanta. So चैत्र वैशाख में वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्रपद में वर्षा, अश्विन कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत, और माघ और फाल्गुन में शिशिर। सिमिलरली राशि में चैत्र में मेष, वैशाख में वृषभ, फिर मिथुन और कर्कट ग्रीष्म में, सिंह कन्या वर्षा में, तुला और वृश्चिक शरद में, धनु और मकर हेमंत में, और कुंभ और मीन शिशिर में। अब कौन से रस का सेवन करना चाहिए? इट इज वेरी रिलेटेड टू द दोष विच इज प्रकोपित। तो शिशिर ऋतु में मधुर, आम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए। वसंत ऋतु में कटुतिक्त कषाय रस का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में फिर से मधुर आम्ल लवण का सेवन कर सकते हैं। शरद ऋतु में मधुर तिक्त कषाय, हेमंत ऋतु में मधुर आम्ल लवण।
बाप रे, इतना आवाज! लेट मी जस्ट म्यूट. चांदखेड़ा सुभाष कौन जा रहा है? ओके, सो वी वर हियर. पंचकर्म कौन सा करना चाहिए? वसंत में कफ बढ़ जाता है तो वमन करना चाहिए, वर्षा में वात बढ़ जाता है तो प्रकोपित हो जाता है तो बस्ती देना चाहिए, शरद में विरेचन और रक्त मोक्षण करना चाहिए बिकॉज पित्त प्रकोपित हो जाता है. सो दिस इज द उपसंहार ऑफ द चैप्टर. इफ यू रीड द चैप्टर and in these two slides you will understand the chapter or you can write on any rutu. Now let us go to the last point. I hope I am audible. मैंने मुझे खुद को तो म्यूट नहीं किया ना? No, I am audible. So we go to the last slide, that is what points you have to write for the exam. एग्जाम में अगर किसी ऋतु पे 14 20 मार्क 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जाम. सो यू हैव 21 points for each ऋतु. यू हैव 21 points for each ऋतु. अगर आपने एक पॉइंट के सामने एक भी लाइन लिख दिया तो यू आर एबल टू राइट अराउंड 2 pages on the ऋतु. if you can describe, you are able to write 3 or 4 pages. So these points are very important and many of the points are similar. For example, अग्नि सिर्फ शिशिर और हेमंत में बढ़ी हुई होती है, बाकी सब सीजन्स में कम होती है. ठीक है. सो फर्स्ट इज द काल. कौन सा ऋतु आदान काल में आता है, कौन सा ऋतु विसर्ग काल में आता है. सेकेंड इज द मास. चैत्र वैशाख है या ज्येष्ठ आषाढ़ है या श्रावण भाद्रपद है या अश्विन कार्तिक है, मार्गशीर्ष पौष है, अश्विन कार्तिक है या माघ फाल्गुन है. The third is the Angla Mass, which will be, I don't teach it, but you will be able to find it in the books. So November, December, January is which Rutu, or January, February, March is which Rutu, then March, April, May is which Rutu. So all these Rutus you will find in the books. You can write it down. Then comes Rashi. That Mesh Rashi and Vrushabh Rashi is which Rutu, then Mithun Rashi, Karka Rashi is which Rutu. So Rashi. देन रस प्राधान्य इन द नेचर. हर जैसे ग्रीष्म में कटु रस का प्राधान्य होता है नेचर में, वर्षा में आम्ल रस का प्राधान्य होता है. तो दैट इज समथिंग विच यू कैन राइट. अग्नि, अग्नि में आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं. एक, आदान काल में अग्नि कम होते जाती है, विसर्ग काल में बढ़ती जाती है. सो यू कैन राइट हाउ यू आर गोइंग टू राइट. सी इन द पेपर्स what is more important is writing relevant things. Okay, in medical examinations, usually what I say in the papers, what we find is if you have asked somebody to describe a tree, what they do is they bring a goat, they tie it to the tree and then they describe the goat. So this should not happen. So अग्नि में आप ये लिख सकते हैं कि शिशिर में अग्नि जो है वो अच्छी होती है, वर्षा ऋतु में जो अग्नि होती है दैट इज मंद. और फॉर ऋतुज लाइक शरद यू कैन राइट कि वर्षा ऋतु से अपने प्रीवियस ऋतु से अग्नि जो है वो अच्छी हो गई. वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में अग्नि अच्छी होती है. सो यू कैन इवन कंपेयर अग्नि टू द प्रीवियस ऋतु. बल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट 3 or 4 times that in आदान काल and विसर्ग काल, in विसर्ग काल the first season has the most bala, in आदान काल the last season has the most bala, and the last season in विसर्ग काल has the least bala, whereas the first season in विसर्ग काल has the least bala. तो ग्रीष्म और वर्षा ये दो सबसे कम बल वाले हैं और हेमंत और शिशिर ये सबसे ज्यादा बल वाले हैं. बाकी दो जो हैं वो मध्यम बल हैं. रस प्राधान्य, खाने में कौन से रस लेने चाहिए? आई हैव ऑलरेडी शोन इट इन द लास्ट दैट ग्रीष्म में मधुर लेना चाहिए, वसंत में तिक्त या कषाय रस लेना चाहिए. फिर प्रकृति में क्या बदल होने वाले हैं, सो दैट यू कैन इजीली राइट कि शरद ऋतु में क्या है, कोल्ड टू हॉट हो जाता है, सडनली हॉट हो जाने की वजह से पित्त बढ़ जाता है, या मतलब प्रकृति नेचर में होने वाले जो बदल हैं वो लिख सकते हैं. शरीर में होने वाले बदल हैं वो भी आप लिख सकते हैं. ठंडा यू कैन रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म. ठीक है. रस सेवन कौन सा करना चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए, दैट इज अगेन मांस 2 प्रकार के हैं, अनुप मांस, जांगल मांस.
धान्य दो प्रकार के हैं, नवीन धान्य, पुराण धान्य. सो यू कैन शफल बिटवीन दीज टू फॉर ऑल डिफरेंट सीजन्स. पीना क्या चाहिए, तो जैसे ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग प्रकार के शरबत बताए हैं, या शरद ऋतु में अलग अलग प्रकार के घी बताए हैं, शरद ऋतु में हंसोदक बताया है. तो पीना पीना कैसे, पीना क्या चाहिए वो है. फिर पीना मतलब मदिरा नहीं है, मदिरा के लिए अलग पॉइंट रखा है हमने. ठीक है. फिर सोना कैसे चाहिए, सोना कहाँ चाहिए, टेरेस पे कब सोना चाहिए, टेरेस पे ग्रीष्म ऋतु या शरद पे ऋतु में सोना चाहिए. फर्स्ट फ्लोर पे कब सोना चाहिए, वर्षा ऋतु में सोना चाहिए. फिर जो वातावरण है आसपास का उसको कैसे रखना चाहिए, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हमको पूरे दिन गार्डन्स में गुजारना चाहिए जहाँ फाउंटेन्स हैं. फिर वही गार्डन और फाउंटेन वाला जो टाइम है वो वसंत ऋतु में दिन का हो जाता है, शरद ऋतु में शाम का हो जाता है. फिर कपड़े क्या क्या पहनने चाहिए वो तो आप लिख ही सकते हो कि ग्रीष्म ऋतु में पतले कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए. उसके बाद शिशिर ऋतु में थिक वुलन क्लोथ या टेरिबुल वाले कपड़े पहनने चाहिए. व्यायाम कितना करना चाहिए, तो वर्षा और ग्रीष्म में व्यायाम, वर्षा ग्रीष्म में व्यायाम नहीं करने को बोला है, शरद में थोड़ा सा, बाकी 3 ऋतुओं में आप जम के व्यायाम कर सकते हो. ठीक है. मदिरा, अगेन पुराण मदिरा और नवीन मदिरा. तो ग्रीष्म में मदिरा को अलाउ नहीं किया है, वर्षा ऋतु में मदिरा को अलाउ नहीं किया है. अगर लेना है तो पुराण मदिरा लेना है. नवीन मदिरा या नूतन मदिरा, न्यू वाइन्स कैन बी टेकन ओनली इन द हेमंत एंड शिशिर ऋतु. मैथुन, तो जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे द सेक्सुअल एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज. इट हैज टू बी द मिनिमम इन 2 ऋतुज, वन इज ग्रीष्म, वन इज वर्षा. दोष का चय, संचय, प्रकोप, प्रशम, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था. कौन सा दोष कौन से ऋतु में, कौन सा दोष कौन से ऋतु में संचय होता है. जैसे शिशिर में कफ संचय होता है, वसंत में कफ का प्रकोप होता है, और ग्रीष्म में कफ का प्रशम हो जाता है. वैसे ही ग्रीष्म में वात का संचय होता है, वर्षा में वात का प्रकोप हो जाता है, और शरद में वात का प्रशम हो जाता है. सिमिलरली वर्षा में पित्त का संचय होता है, शरद में पित्त का प्रकोप होता है, और उसके बाद हेमंत में पित्त का प्रशम हो जाता है. तो दोष के संचय आदि का टेबल या सर्कल डायग्राम आप बना सकते हो उसमें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंचकर्म कौन सा करना चाहिए, तो जैसे वमन वसंत ऋतु में करना चाहिए, विरेचन शरद ऋतु में करना चाहिए, रक्तमोक्षण शरद ऋतु में करना चाहिए, और बस्ती जो है वो वात ऋतु में देनी चाहिए. सो इफ यू राइट these 21 points will help you write any question related to the Rutu without deviating much from the relevant aspect of the Rutu, and you can think about and write something in the exam. So this whole chapter will be very easy to write on these 21 points.